Hello students, welcome to Dingwa Academy. So we have started with basics of chemistry. We discussed part 1, part 2. Today we are starting with part 3. So in part 1 we discussed various theories of Dalton's atomic theory. We did Rutherford's atomic theory, Bohr's atomic model. Okay, after that we discussed the atomic structure in detail. So we discussed what are protons, their atomic mass, okay, neutrons, electrons, okay, also with empty spaces, okay. Then further we discussed distribution of electrons. So in distribution of electrons we did how to write shells of sodium, potassium, okay, what is valency. After that we did isotopes, as we know that they have same atomic number but different atomic mass number. Further we did atomic number in detail, and then we did atomic mass number. Atomic number is your number of proton and atomic mass number is your proton plus neutron. After that we started with part 2. So in part 2 we did composition of matter. In this we discussed element, mixtures, okay. After that we write how to write an chemical formula, okay. So we know that basically the chemical formula, like carbon dioxide, so formula is CO2. So why the formula is CO2, we discussed in detail about that. Similarly water, so H2O. Metals and non-metals, we discussed difference between both of them. So let's start with today part 3. So in part 3 we'll be discussing laws of chemical combination. So in this we'll be discussing law of conservation of matter and law of constant proportion. After that we'll start with molecular mass, concept of mole, and Avogadro's number, okay. So law of conservation of matter. So law of conservation of matter states that there is no rise or drop in weight of a matter during a chemical reaction, okay. So for example we'll take one chemical reaction. So calcium chloride is plus sodium sulfate is getting converted into calcium sulfate plus NaCl, okay. So when 200 gram of calcium chloride, okay, it was kept in a beaker, and in a test tube there was an sodium sulfate which was 100.23 gram, okay. So after mixing both of them, okay, initially the sodium sulfate which was there, that was in test tube, and calcium chloride was there in beaker. We have not yet mixed, and we took out the weight. तो weight कितना मिला उसका 300.23 grams, okay. जैसे ही उसको मिक्स कर दिया, ठीक है, तो हम लोग को रिएक्शन में क्या मिला, कैल्शियम सल्फेट एंड NaCl, ओके. तो उसका वेट जो है वो 300.23 ग्राम था रिएक्टेंट में, वही तुम्हारा वेट जो है वो रिएक्शन प्रोडक्ट में मिला, ठीक है. ओके, सो दिस इंडिकेट्स दैट देयर इज नाइदर राइज और ड्रॉप, मतलब ना ही वेट बढ़ रहा है, 300.23 ग्राम्स है तो वो 300.24 भी नहीं हो रहा है, नाइदर ड्रॉप या फिर कम भी नहीं हो रहा है इन द वेट ऑफ अ मैटर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. मतलब जितना वेट तुम्हारा रिएक्टेंट में होगा उतना ही वेट तुम्हारा प्रोडक्ट में होगा, ओके. कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, ओके. सो विल डिस्कस द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. So the proportion by weight of constituent elements in the various sample of the compound is fixed. मतलब हमेशा रेशियो जो है वो हमेशा फिक्स होगा, ओके. जैसे कि फॉर एग्जांपल 9 ग्राम ऑफ H2O दैट इज वाटर विल कंटेन ऑलवेज 1:8. उसको हम लोग एग्जांपल से डिस्कस करेंगे. कार्बन डाइऑक्साइड है, सो 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल ऑलवेज हैव अ रेशियो ऑफ 3:8. वैसे ही तुम्हारा कॉपर ऑक्साइड है तो उसका रेशियो कितना होगा, 4:1 इन 79.5 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड. तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल water, okay, H2O. so H2O contains hydrogen and oxygen. हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट जो है वो 1 है, एटॉमिक मास, एंड ऑक्सीजन का जो है वो 16 है, ओके. सो टोटल हाइड्रोजन कितना है, 2 है. सो मल्टीप्लाई इट विद 2, सो यू गेट 2. सो द रेशियो कम्स 2:2/16. सो रेशियो इज 2 1s are 2 8s, तो रेशियो कितना आया, 1:8, ओके. वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड, ओके. सो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स कार्बन एंड ऑक्सीजन, ओके. कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास 12, वही ऑक्सीजन का होता है 16, ओके. अब ऑक्सीजन टोटल कितने, 2 है, सो 16 into 2 is 32. सो रेशियो इज 12 divided by 32. सो 4 3s are 4. हाउ मच द 32, 8s, ओके. सो रेशियो कम्स आउट टू बी 3:8. आई होप इट्स वेरी इजी. वैसे ही कॉपर ऑक्साइड, ओके. कॉपर ऑक्साइड के अंदर क्या होता है, कॉपर एंड ऑक्सीजन. सो कॉपर का एटॉमिक मास जो है वो 63.5 होता है, वही ऑक्सीजन का है, तो ऑक्सीजन का पहले से ही 16. सो विल डिवाइड दिस पार्ट, 63.5 डिवाइडेड बाय 16. सो 16 1s और 16 4s जो है वो 64 होता है, ओके. सो ऑलमोस्ट तुमको मिलेगा 3.98. सो द रेशियो कम्स आउट टू बी 4:1, ओके. सो वैसे ही हम लोग को रेशियो मिला ऑक्सीजन
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दैट इज ऑफ वाटर, सो वी गॉट 1:8. कार्बन डाइऑक्साइड का 3:8. वैसे ही कॉपर ऑक्साइड, सो वी गॉट 4:1. सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, द प्रोपोर्शन बाय वेट ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट जैसे कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वेरियस सैंपल ऑफ कंपाउंड इज फिक्स्ड. तो वाटर होगा तो उसका सैंपल में जो भी है 9 ग्राम होगा तो 1:8 होगा. कार्बन डाइऑक्साइड है तो 44 ग्राम में 3:8 होगा. वही कॉपर ऑक्साइड है 79.5 ग्राम होगा तो 4:1 होगा. ओके, तो नाउ आई विल डिस्कस मॉलिक्यूलर मास. सो व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास? मॉलिक्यूलर मास मतलब sum of atomic mass of all atoms in a single molecule of that substance. Okay, जैसे कि फॉर एग्जांपल we'll take one example of H2O that is water. तो वाटर के अंदर क्या होता है? एक तो हाइड्रोजन होता है और एक ऑक्सीजन होता है. ओके, अभी एटॉमिक मास लिखना है. ओके, पहले वाले कॉलम में तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16. ओके, फिर हाइड्रोजन कितने इसके अंदर 2 है, ऑक्सीजन कितने 1 है. ओके, सो फिल करो इसे और जिस तरह से दिया है उसे मल्टीप्लाई करो. जैसे कि यहाँ पर लास्ट कॉलम में a इंटू बी, सो 1 इंटू 2 इज 2, 16 इंटू 1 इज 16. इनको ऐड कर दो टोटल, सो 2 + 16 इज 8. सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज व्हाट 18. ओके, यही है. जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर है तो 2 हाइड्रोजन है, 2 एक ऑक्सीजन है. ओके, सो उन सबको ऐड कर दो, यू विल गेट द टोटल, सो दैट इज योर 18. ओके, so this is your molecular mass of water. So now we'll discuss about NaCl. So देखो बेसिकली कैसा है, मॉलिक्यूलर मास हमेशा सॉल्व करने से पहले आई गिव यू अ टिप कि तुमको हमेशा मॉलिक्यूलर वेट मतलब एटॉमिक मास हर एक एलिमेंट का पता होना चाहिए. ओके, आई गिव यू फ्यू एग्जांपल. जैसे कि कार्बन है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है पर एटॉमिक मास नंबर 12 होता है. ओके, गो थ्रू वंस द पीरियोडिक टेबल. वैसे ही तुम्हारा नाइट्रोजन है तो उसका एटॉमिक नंबर होता है 7 पर एटॉमिक मास नंबर होता है 14. वैसे ही तुम्हारा ऑक्सीजन तो एटॉमिक नंबर होता है ऑक्सीजन का 8 पर एटॉमिक मास नंबर होता है 16. ओके, सो वैसे ही तुम्हारा सोडियम है और क्लोरीन है. सोडियम का एटॉमिक नंबर तुम्हारा होता है 11 पर एटॉमिक मास नंबर होता है 23. ओके, वैसे ही क्लोरीन है तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 पर एटॉमिक मास नंबर होता है 35.5. ओके, ये चीज जानने के लिए तुमको एक बार पीरियोडिक टेबल अच्छे से लर्न करना पड़ेगा. तो एक मतलब बेसिकली कैसा है, फर्स्ट ऑलमोस्ट मतलब 30 to 35 एलिमेंट्स का लर्न कर लो. ओके, और जो जो एलिमेंट्स का बार बार आ रहे हैं, ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, तो उनका हमेशा याद ही रखो. ठीक है, वैसे ही NaCl है तो NaCl के अंदर सोडियम है, क्लोरीन है. ओके, सो एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 23, क्लोरीन का कितना है 35.5. दोनों के एटम कितने हैं, सोडियम एक है क्लोरीन भी एक है. सो यहाँ पर कितना आएगा 23 + 35.5. सो व्हेन वी ऐड दिस वी विल गेट 58.5. सो NaCl का मॉलिक्यूलर मास होता है 58.5. ओके, अगर तुमको मॉलिक्यूलर मास एक बार अच्छे से आ गया कैसे कैलकुलेट करना तो उस हिसाब से हम लोग मोल भी कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, विल स्टार्ट विथ थर्ड एग्जांपल दैट इज ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज CaOH ट्वाइस. ओके, सो राइट एलिमेंट. सो इसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट है. तुम्हारा कैल्शियम है, ओके, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है. ओके, सो कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1. ओके, सो वही तुमको एलिमेंट्स कितने कैल्शियम के, नंबर ऑफ एटम एक ही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों 2 है, सो राइट 2. ओके, नाउ दोनों को मल्टीप्लाई करो. सो 40 इंटू 1 इज 40, 16 2 ज़ा 32 प्लस 1 इंटू 2 2. ओके, सो ऐड ऑल ऑफ देम. सो 2 + 2 4, 7, 4 + 3 is your 7. So calcium hydroxide का कितना आएगा 74 is your molecular mass. Okay, so we'll start with mole. Mole is basically your mass of substance in gram upon molecular mass of substance. Okay, so mass of substance मतलब mass हमेशा उसका ग्राम में होना चाहिए. If it is there in kg then you have to convert it into gram. Okay, for the molecular mass हम लोग ने अभी कैलकुलेट किया था. जैसे कि वाटर का हम लोग को 18 मिला था, NaCl का 58.5. ओके, सो थोड़े बहुत याद रखो. ठीक है, तो कैलकुलेट द नंबर, विल अंडरस्टैंड विद एग्जांपल. कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 18 ग्राम ऑफ वाटर. ओके, सो मोल का फॉर्मूला मैंने तुमको लिख के दिया हुआ है. मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम तो 18 ग्राम दिया हुआ है. मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, वाटर की. तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18. सो इसका मोल कितना आएगा 1. ओके, वैसे ही फॉर एग्जांपल 66 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, सो मोल इज व्हाट बेसिकली योर मास. मास कितना दिया हुआ है 66. कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है हम लोग ने प्रीवियसली कैलकुलेट नहीं किया था तो करेंगे. कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16 और टोटल कितने हैं
एलिमेंट है कार्बन के 2, सो बेसिकली योर 16 इंटू 2 32, सो 12 प्लस 32 गिव्स यू 44. तो मॉलिक्यूलर मास कितना आया कार्बन डाइऑक्साइड का 44. सो 22 बेसिकली it will get divided. Okay, so 22 3s are 22, 2s are okay, so answer is 1.5. so कितना आया 1.5 मोल. ओके, so we'll do Avogadro's number. so Avogadro number says कि एक मोल ऑफ सब्सटेंस के अंदर 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं. ओके, सो वी फाउंड आउट मोल. ठीक है, हम लोग को वाटर का मोल जो था वो 1 मिला 18 ग्राम्स के अंदर वाटर के अंदर, वैसे ही 66 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में 1.5 मिला. ठीक है, सो वही तुमको चीज खाली क्या करना है कि एक मोल के अंदर 6.022 है, तो 1.5 मोल के अंदर कितना होगा. ओके, सो उसे 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे. फॉर एग्जांपल 1 मोल कंटेन दिस, सो 1.5 मोल इज इक्वल टू x. सो नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई. ओके, so x into 1, so is your x, and 1.5 into 6.022 into 10⁻23, so you get 9.033 into 10⁻23 molecules. Okay, we'll understand with one more example. जैसे कि फॉर एग्जांपल समझो यहाँ पे 18 ग्राम ऑफ वाटर था. ओके, अगर 36 ग्राम ऑफ वाटर होता. ओके, सो इसका मोल कितना आता. सो मोल कितना आता हमको 36 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना वाटर का 18. ओके, सो 18 1 जा 18 2 जा. ओके, सो मोल कितना मिला 2 मोल. ओके, सो सेम वैसा एक मोल के अंदर कितना है 6.022, तो 2 मोल के अंदर कितना होगा 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 2. ओके, सो इट विल कम टू 12.044 इंटू 10⁻23. वैसे ही अगर 3 मोल पूछा है तो 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23. ओके, सो दिस वॉज द लास्ट पार्ट ऑफ today's part 3 of basics of chemistry. I hope you have understood each and every part.